السلام علیکم۔ ناول جنت کے پتے، رائٹر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 42۔ حیا۔ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی کیلس جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ میں تسمیہ انداز میں ہاتھ سے کان کو چھوا اور جھٹ سی آواز نکالی، اور تم نے یہ عائشہ کو بات بتا دی؟ نہیں، بہاریں ذرا سا اٹکی تھی۔ جہان نے کہا تھا اسے اگر سنا ہو تو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھی ہوگی۔ اس نے اپنی عقل کے بجائے جہان کی عقل پر بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی۔ بہاریں سے اسے نہیں تھا خطرہ۔ بیگ کے ایک زپ میں ڈبی کو ٹوٹی اینک رکھی تھی۔ اس نے احتیاط سے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیگ میں اندرونی خانے میں رکھ لی، جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا تھا، اور بیگ کی زپ زور سے آواز کے ساتھ زور سے بند کی۔ کل انہیں انقرہ جانا تھا۔ آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کو سی آف کرنے آشیانہ کے صحن میں کھڑے تھے۔ اتنے دنوں یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب ایک ایک کو خداحافظ کہنا، مسز سونا اور پنار کے گلے لگ کر رونا، وہ کھوکھلا وعدہ کرنا، سب بہت اداس کرنے والا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار رہ رہی تھیں۔ ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو بہت کچھ پایا بھی تھا۔ کبھی جو وہ سود زیاں کا حساب کرنے بیٹھی تو پانے والا پلڑا شاید بھاری نکلے۔ جہان نے بہاریں کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیے تھے، البتہ انقرہ میں وہ خود انہیں نہیں ملا تھا۔ حیا نے اسے ایئرپورٹ سے سی آف کرنا اور تہران میں اس کی بہن نے ریسیو کرنا تھا۔ بہاریں ایئرپورٹ پر آخری وقت تک داخلہ احتیاطی کو دیکھتی رہی، شاید آ جائے۔ وہ نہیں آئے گا بہاریں، اس نے کہا تھا وہ نہیں آ سکے گا۔ بہاریں کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ پس منظر میں اعلان ہونے لگا تھا، اب ان دونوں کو الگ ہونا تھا۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیا؟ اس کی بات پر حیا نے گہری سانس بھری اور بہاریں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی، اور پھر اس دونوں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بہاریں گل، زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسی نہیں ملتی جیسے وہ سوچتا ہے۔ سب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہم نے سوچا تھا ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کبھی دوبارہ نہیں مل پائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ہو۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھ کر کھڑی بہاریں اس کی بات پر چونکی، پھر انوکھی چمک اس کے چہرے پہ امڈ آئی۔ ہاں بہاریں، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر، کسی شاپنگ مال میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی فلائٹ کے دوران ہم کئی سال بعد اچانک سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ زندگی میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ ہاں واقعی، مگر پھر اس کا چہرہ ذرا سا بجھا۔ لیکن میں تمہیں کیسے پہچانوں گی؟ تم تو نقاب کرتی ہو۔ اگر قدرت نے کبھی ہمیں کسی ناممکن کنڈیشن میں آمنے سامنے کر دیا تو پہچاننا بھی کروا دے گا۔ اب کہ بہاریں کھلی مسکرائی۔ بہت دیر بعد اس نے بہاریں کے معصوم اداس چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ حیا سلیمان، بہاریں گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے باری باری حیا کے دونوں رخسار نقاب کے اوپر سے چومے، اور پھر بہاریں گل چلی گئی۔ زندگی کا ایک باب ٹھک سے بند ہو گیا۔ جہان کی جاب کا اصول تھا، ایک اسائنمنٹ کے لیے ان کے تعلقات ضرورت پڑے تو ان کو بہرحال کیا جا سکتا تھا۔ بس ایک مہم سے امید تھی، وہ بھی کہ شاید پھر کبھی وہ چاروں اکٹھے ہو سکے، مگر بہت مہم، جیسے تیز آندھی میں ٹمٹماتی موم بتی کا شعلہ۔ کھڑکی سے چھن کرتی آتی روشنی کتاب کے صفحوں پر پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سامنے پھیلا رکھا تھا۔ وہ الفاظ پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھی، پڑھ نہیں پا رہی تھی، ذہن کہیں اور تھا، دل پر عجیب اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ جب تک بہاریں واپس نہ آ جائے وہ یوں ہی افسردہ رہتی۔ یہ وہ وجہ تھی جس سے وہ خود کو بہلا رہی تھی۔ یہ اداسی صرف بہاریں کی وجہ سے تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ جب وہ آ جائے گی تو پھر یہ افسردہ سی رہے گی، بس تب بہانا ختم ہو جائے گا۔ کھڑکی کے جالے سے ہوا تیز جھونکا آیا تھا، کتاب کے صفحے اس کے ہاتھ میں پکڑا رہ گیا۔ اس کی زندگی کا ایک باب بھی کتاب کے اس صفحے کی مانند تھا جس نے بے دردی سے پھاڑ دیا گیا تھا۔ کوئی نشان جلدی سے کاغذ
का कोई टुकड़ा बाकी न रहा था। आयशे गुल ने किताब बंद किए बताने पे डाल दिए। उसका दिल किसी शे से नहीं लग रहा था। जिंदगी का वो बाप अब्दुर्रहमान पाशा एक अजनबी जवान की जिंदगियों में आया और फिर उनको पूरी जिंदगी बन गया। वो कितना अच्छा और सुलझा हुआ नफासत पसंद आदमी था। उसकी हर चीज़ परफेक्ट थी। वो उसके साथ भी बहुत अच्छा था। जब उस्मान ने अपने बेटे का रिश्ता पाकिस्तान में तय कर दिया और सफ़ीर उनसे नाराज़ हो गया, तब भी अब्दुर्रहमान के कहने पर उसने बार बार सफ़ीर से उस मौजू पर बात की। अब्दुर्रहमान को जब भी कोई ख़ास काम होता उसके पास आ जाया करता, जैसे उस रात वो हया को लेकर आया था। उस रात तो वो उसे अब्दुर्रहमान लगा ही नहीं था, इतना रफ हुलिया, बेचैन, मुसरिफ, बिखरा बिखरा सा। मगर जब उसने रात की सुबह होती तो फिर पुराना अब्दुर्रहमान बन गया, बल्कि वो बन गया जो उसके थप्पड़ के बाद बना था। अच्छी लड़कियां जल्दबाजी नहीं करती, मगर उससे हो गई थी। वो थप्पड़ उससे और अब्दुर्रहमान के दरमियान एक ऐसी सर्द दीवार बन गया था जिसे वो कभी पार न कर सकी। उसने आयशा को उस थप्पड़ के लिए माफ़ कभी नहीं किया था और अब तो वो उससे बहुत दूर जा चुका था। बहारें आने और वो खुद सब उसे भुला देंगी क्या? पाशा भी तो अपने कामों में मसरूफ सती सा आदमी था, मगर आनी उसने निगाह उठाकर देखा। कमरे के दूसरे कोने में आनी बैठी स्वेटर बुन रही थी। पहले और उससे पहले दोनों सरमा में उन्होंने अब्दुर्रहमान के लिए स्वेटर बुने थे। इस दफ़ा भी वो अपनी रूटीन दोहरा रही थी। वो दिखती थी कि किसी तरह आनी फ़ोन की बेल, दरवाजे की दस्तक और आहट पर चौंकती, फिर अब्दुर्रहमान की खैर खबर पाकर अपने मायूसी से अपने काम में ध्यान लगा देती। सब कुछ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पा रही थी। शायद हाँ, शायद नहीं, मगर अब भी उसे क्या करना है? ब्लाउज़ की जेब से तय किया हुआ कागज़ निकाला, उसे खोला। तुर्की की अमानत है क्या? उसे लौटा देनी चाहिए। उसने गर्दन फेरी, कैलेंडर देखा, आज हफ्ता था उसे, और ये मालूमात उसे परसों यानी पीर मंगल को दरमियानी शब के बारे में थी। अब सही वक्त आन पहुंचा था। वो एक फैसले पर पहुंचकर उठी और अपना पर्स उठाया। तकरीबन आधे घंटे के फासले पर वो अपने घर से बहुत दूर एक पीसीओ फ़ोन पर खड़ी थी। कार्ड डालकर नंबर मिला रही थी। देख तो अब्दुर्रहमान, आयशे गुल क्या कर सकती है? रिसीवर कान से लगाया। उसने तय किया हुआ कागज़ खोलकर सामने रखा, साथ ही कलाई पर बंधी घड़ी देखी। उनको उसका कॉल ट्रेसर करने में 90 सेकंड लगे थे। वो उसी सेकंड बाद कॉल काट दी गई। कॉल मिलने के 10वें सेकंड में उसका राब्ता मौजूदा कमांडर से हुआ था। मेरे पास आपके लिए बड़ी टिप है। आप कौन हैं? कहाँ से बोल रही हैं? भारी आवाज़, मर्दाना कॉल लंबी करने की कोशिश की गई थी। झूठ बोलना नहीं चाहती और बज़ाहिर सच बताऊंगी नहीं। मेरा वक्त ज़ाया ना करें। पोर्ट्रेट मंचरी सुने जो मेरे पास है, वो तेज़ी से बोली। 25 सेकंड। दिल था कि तेज़ी से धड़क रहा था। जी जी कहें। दूसरी जानिब कॉल रिकॉर्ड की जाने लगी थी। रेड अलर्ट। मंगल और पीर के दरमियान के दिन 2 बजे के करीब कैलिस से 3 किलोमीटर दूर तुर्की और शाम की सरहद कोई क्रॉस करेगा। उसकी बहुत से नाम हैं, मगर मैं आपको बताऊंगी जो आप जानते हैं। 40 सेकंड। कौन सी चौकी के करीब? वो नोट कर रहे थे। आयशे जल्दी जल्दी वो तमाम चीज़ें दोहराने लगी जो उसके कागज़ पर लिखी थी, छोटी छोटी बातें जो अहम थी। इतला देने का शुक्रिया। ये क्या आपको यकीन है कि वो अपना प्रोग्राम नहीं बदलेगा? 80 सेकंड। नहीं, मरहबा। उसने खट से रिसीवर रखा, फिर दिल पर हाथ रखकर चंद गहरी सांसें अंदर उतारी। अल्लाह अल्लाह, उसने कर लिया। ये तो ज़रा भी मुश्किल नहीं था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगी, अपने फूले तनफ्फुस को फ़आल करने की कोशिश कर रही थी। दिल था कि बुरी तरह धड़क रहा। अब्दुर्रहमान देखो, आयशे गुल क्या कर सकती है? वो पलटी, सर झुकाए तेज तेज चलती कैब स्टडी की जानिब बढ़ी और जल्दी जल्दी घर पहुंचा ताकि आनी को शक न हो। छत से खुली ग्रे सपोर्ट का रक्षा हाईवे पर दौड़ता जा रहा था। वो कहनी दाएं तरफ खड़ी पर टिकाए हुए मुट्ठी कार को सहारा दिए, आंखें मूंदे
कच्ची पक्की नींद में थी। गर्म हवा से स्याह स्कार्फ फड़फड़ा रहा था। दफतन कार को जोर सा झटका लगा था कि उसका चेहरा आगे को लुढ़का, मगर अगले ही पल वो आंखें खोलकर संभल कर पीछे हुई। सामने लंबा हाईवे। उफ, ये सूरज तुलू हो रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। सड़क के दोनों अतराफ खुश्क वीरान था। वो पहाड़ थे। मैं सो गई थी। वो आंखें मलती जैसे खुद से पूछा, नहीं मादाम, आप कल रात से ड्राइविंग कर रही हैं। सो मैं रहा हूँ। हया ने बाएं जानिब देखा। जहान दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे ड्राइव कर रहा था। नीली जीन्स पर नीली शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़ी हुई थी। स्याह ग्लासेस लगाए, जिसकी आंख के करीब जख्म का निशान साफ नजर आ रहा था। क्या हम कैलिस पहुंच गए? उसने गर्दन उधर उधर घुमाई। मोटरवे के अतराफ के मखसूस वीरान इलाका। नहीं, सो जाओ, जब पहुंच जाएंगे तुम्हें उठा दूंगा। हया ने अस्पात में सर हिलाया और गर्दन सीट के पुश से लगाकर आंखें मोड़ ली। जहान ने निगाह उठाकर उसे देखा, फिर अफसोस से सर झपटा। हया खानम, फ्रंट सीट पर बैठी हो। इखलाकियात होते हैं, उनमें से दूसरा नंबर किस चीज़ को कहा जाता है? मैंने सीट बेल्ट पहन रखी है। बंद आंखों से कहते हुए हाथ से अपने सीट बेल्ट को छू कर यकीन दिलाए। वो पहला उसूल है। दूसरा, फ्रंट सीट पर सोने की ममानत के हवाले से है। नींद वैसे ही टूट गई थी। ऊपर से उसके तंज आंखें खोलकर पूरी तरह जागकर सीधी हो गई। तुम्हारे मुंह से एथिस का लफ्ज़ कितना खूबसूरत लगता है ना जहान। क्यों? चंद एक बातों के अलावा मैं एक डिसेंट इंसान हूँ। वो बुरा मान गया। हैरानी की बात है। थैंक यू सो मच जहान सिकंदर, वरना मैं अनकरा से यहाँ तक यही सोचती आ रही थी कि ये कार तुम्हारी अपनी है या चोरी की है। जहान ने एक खफा निगाह उस पर डाली। रेंट की है, कहकर सामने देखने लगा। हम कैलिस कब पहुँचेंगे? ड्राइवर तो तुम हो ना, तुम ड्राइविंग कर रहे हो। मैं तो सो रही थी। फिर एक तो पता नहीं हर ड्राइविंग करने वाला क्यों समझता है कि उसके अलावा बाकी तमाम मुसाफिर थक नहीं सकते। और तुम्हारे पाँव तो नहीं दुख रहा ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। और तुम्हारा सर दर्द? उसने फिर जारियत के पर्दे में दफा किए। मैं ठीक हूँ। हया ने चेहरा मोड़कर बगौर उसे देखा उसकी जानिब। आखिरी दफ़ा सच कब बोला? अभी 10 सेकंड पहले, जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ। वो जानती थी अगर उसके सर में दर्द होता तो वो नहीं बताता। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे। बाहर चलती गर्म हवा के थप्पड़ों के सिवा कोई आवाज़ न सुनाई दी। हम कैलिस कब पहुँचेंगे? उसने अब ज़रा उकताते हुए तीसरी दफ़ा पूछा। 2 घंटे लगेंगे। मैंने नहीं कहा था तुमको आने को, तुम खुद आई थी। शिकायत तो नहीं कर रही, टाइम ही पूछ रही हूँ। कोई 17वीं दफ़ा पूछ रही हो। बाकायदा बुरा मान गया था। और तुम कपादोकिया देखने आई थी ना, फिर कैलिस आने की क्या ज़रूरत थी? मेरी मर्जी। उसने बेनियाजी से शानें उचकाई। ये कह नहीं सकती थी कि वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी उसे डर था कहीं उसे खो न दे। गाड़ी इस तरह सनसनान सड़क पर दौड़ती रही। शाहजोना दरस आस पास अकाद गाड़ी गुजर रही थी। हर तरफ सुनहरी खामोशी थी। हम कैलिस में कहाँ रहेंगे? कभी कभार बहारे गुल बनने में कोई हर्ज नहीं होता। सो उसने एक और सवाल किया। एक सेफ हाउस है, रात वहीं रहेंगे। आज इतवार है, कल पीर का दिन है, भी वहीं गुजारेंगे। फिर कल रात जो बॉर्डर पर चला जाऊंगा और तुम परसों सुबह तुम इस्तांबुल चली जाओगी। फिर परसों रात तुम पाकिस्तान की फ़्लाइट ले लोगी। अब अगर कहती हो तो 18वीं दफ़ा सारा प्लान दोहरा दूं। इतनी बुरी लग रही हूँ तो ना लाते ना मुझे। तुमने एक दफ़ा भी मना नहीं किया और फौरन राज़ी हो गए। तुम अंदर से खुद यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। वाह, ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। जहां ने मुस्कुराहट दबाकर सर झुकाया। वो यकीनन उसके सोने से बोर हो रहा था और चाहता था वो जाग जाए और जली कटी उसे सुनाए, मगर बोलती रहे। मगर मजाल है जो ये आदमी एतराफ़ कर ले। वो खफंगी से मुंह मोड़े बाईं तरफ देखने लगा। पाकिस्तान में ड्राइविंग सीट बाईं तरफ होती है और तुर्की में दाएं जानिब हो। सो जहान की बाएं जानिब बैठी थी। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था। कल रात जब अनकरा होटल से जहान ने उसे पिक किया था, तब से अब तक वो हालत सफ़र में थे। वैसे अब बताओ, दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर कौन है?
वो अब उसे छेड़ रहा था। इस्लाम आबाद, वो बेनियाजी से बोली। अच्छा? स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए जहान ने अस्पात में सर हिलाया। और हेलन ऑफ ट्रॉय के ट्रॉय का जिक्र तो सुना होगा ना तुमने? हाँ, उसका यहाँ क्या जिक्र? वो दूर नजर आते पहाड़ों को देखकर बोली। ट्रॉय का तारीखी शहर तुर्की में ही वाक़ है। हाँ, वो हेलन ऑफ ट्रॉय की कहानी तुर्की की ही तो है। अच्छा? जहान ने अपनी तेज उसे मुतासिर करने की कोशिश की, मगर हया ज़रा असर नहीं ले रही थी। वो अब भी डीजे की दोस्त होने का हक अदा करना चाहती थी। जहान कुछ देर दांत से लब दबाए कुछ सोचना रहा, फिर एकदम उसने गर्दन मोड़कर हया के उस तरफ दूर से नजर आते पहाड़ को देखा और एक मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। उस पहाड़ का नाम मालूम है? हया उसके एतराफ को देखकर बस जरा से शाने उचकाए। नहीं, ये माउंट निमरूद है, कहकर हया के चेहरे के तासरात देखे। अच्छा? वही बेनियाजी। नहीं, तुम नहीं समझी, ये माउंट निमरूद है। निमरूद को तो तुम जानती ही होगी। कौन? उसके लबों से फिसला। फिर उसे याद आया, तुर्कों के जो नामात पर ख़त्म होते हैं वो हमारे यहाँ दाल पे ख़त्म होते हैं। अहमद से बिना अहमद, मौलूद से बिना मौलूद और निमरूद से बिना निमरूद। बादशाह निमरूद, वो चौंकी। हाँ, वही निमरूद। और ये वही पहाड़ी है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में उतारा गया था। अल्लाह अल्लाह, ये वो पहाड़ है? ये पहाड़ तुर्की में है? उसकी हैरत को झटका सा लगा। वो सीधी हो बैठी। वो भूरा सा पहाड़ जो उनसे बहुत दूर था, काफ़ी देर उसके साथ चला आ रहा था। ये था वो पहाड़। वो 5 माह से तुर्की में थी और उसे कभी पता नहीं चला कि वो सारा किस्सा आज की तुर्की में ही हुआ था। जहान अपने मकसद में कामयाब होकर आसूदा सा मुस्कुराए हुए ड्राइविंग कर रहा था। वो अपना इस्लामाबाद भुलाने बिना पलक झपके अब से पहाड़ को देख रही थी। वो 4000 साल पुराना किस्सा, वो जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है, वो उस पहाड़ पर पेश आया था। बिल्कुल उसी पहाड़ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब अपना पैगंबर मानते हैं, उनको आग में डाला गया था। वो आग जो जला देती थी, जो राख कर देती थी, मगर वो आग उनके लिए गुलजार बन गई थी, नरम गुलाबों की तरह। फिर हर किसी के पास कल्ब सलीम नहीं होता, और जाने उस सलीम दिल के हासिल करने के लिए पहला इंसान को कितना जलना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके आग पर असर करना छोड़ दे। हाँ, तपिश असर करना छोड़ दे। जल जल कर इंसान कुंदन बन जाता है। और फिर लोग पूछते हैं, आपका अबाहे में गर्मी नहीं लगती? और हिजाबी लड़की हैरान होती है, गर्मी? कौन सी गर्मी? उसने बेइख्तियार बाजुओं के ऊपरी हिस्से को छुआ, जहाँ दागे गए 3 हरूफ आज भी वैसे ही थे। वो कौन थी? हाँ, बहुत गुनहगार, बहुत गलतियाँ करने वाली ही सही, बहुत नाफरमान किस्म की मुसलमान ही सही, मगर सामने उस पहाड़ पर नक्श तहरीर से एक उम्मत होने का रिश्ता तो था। और ज़िंदगी में बैज़ लम्हे ऐसे होते हैं जब किसी मुसलमान को खून से आबले जोश, बाजुओं पर खड़े होके रोंगटे जज्बात, भीगे आंसुओं के साथ अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस होता है। और वही लम्हा उसके साथ हुआ था। कैलेस करीब आया तो नमरूद दूर होता गया, मगर उसका शहर अभी तक कायम था। जहां बता रहा था कि नमरूद ताग पर नमरूद के बड़े बड़े मुजस्मे पड़े हैं, जिसका सर काट दिए गए हैं, और अब वो कटे हुए सर की पहाड़ियों के कदमों में जहाँ बचा पड़े हैं, और स्याह उन पर स्टूल की तरह बैठकर तस्वीरें बनवाते हैं। जो सर झटकते नहीं, उसे बुरी तरह काट दिया जाता है। चलो, वक्त इंसान से जो भी छीने, कम से कम इस बात का फैसला तो कर ही देता है कि कौन तारीख में दुरुस्त था और कौन गलत। कैलिस से ज़रा दूर एक कीन स्टेशन पर रुकी तो जहान ने कहा, वो इधर करीबी स्टोर से गिफ्ट लेना चाहता है। किसके लिए? उसने नहीं बताया। यकीनन अपने मेज़बानों के लिए। वो भी गाड़ी से नीचे उतर आई। स्टोर में आकर परफ्यूम वाले रेक की तरफ चला गया। खालिस जनाना परफ्यूम। उसे शुबा हुआ वो किसी लड़की के लिए शॉपिंग कराए। अजीब सा लगा। खैर, वो मेकअप सिलेक्शन में कॉस्मेटिक उलट पुलट कर देखने लगा। फिर याद आया कि काजल खरीदना था। अब उसका कब का ख़त्म हो चुका था। अब इस्तेमाल भी ज़रा कम करती थी। पता नहीं यहाँ कैसा मिले काजल स्टिक्स की टोकरी से जैसे ही उसने एक काजल उठाया, एकदम छम से आंखों के सामने आग
खड़ी हुई। तुर्की आने से कबल वो चंद रोज़ जब उसने और डीजे ने इकट्ठे शॉपिंग की थी, उनमें से एक दिन एक शॉपिंग कॉस्मेटिक सेक्शन में खड़ी थी। हया सबसे अच्छा और आला मेकअप ब्रांड का दिखाएं। उसने लब ग्लोस होंठों पर लगाकर चेक करते हया की माहिर तस्वीर करके पूछा था। उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। आहा, डीजी ने सेल्स गर्ल की तरफ मुड़ी। एक मेक का काजल दिखा दे। सेल्स गर्ल ने फौरन मेक का काजल निकाल कर सामने किया। खूबसूरत डब्बी, जदीद अंदाज। डीजे आंखों में सताइश उभरी। कितने का है? उसने उलट पलट कर डब्बी देखनी और पूछा। 800 रुपये का। डीजे का मुंह खुला रहेगा। ये एक 800 रुपये का? सेल्स गर्ल ने शानी से अस्पात में सर हिलाया। डीजे के हाथ में पकड़ी काजल को देखा, फिर सेल्स गर्ल को, फिर हया की तरफ होकर सरगोशी की। साथ ही ठीक से काजल का काउंटर पर रखकर कतनियत से सेल्स गर्ल से बोली, दिखाएं भाई, वही अपना 35 रुपए वाला हाशमी का काजल। मंजर निगाहों के सामने से तहलील हो गया और निगाहें धुंधला गई। फिर भी वो धीरे से हंसती और आंखें रगड़ी। यादें जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो काजल लिए बगैर कि पाकिस्तान से ले लेगी। जहान की तरफ पलटी। वो एक परफ्यूम खरीद चुका था और अब पेमेंट दे रहा था। इतना छोटा सा स्टोर है, तुम्हें कैसे पता कि इतना महंगा परफ्यूम जो ले रहे हो और ओरिजिनल है या नकली? जहान को टोकना तो कौमी फरीज़ा था उसका। जहान ने बकाया पैसे पकड़े और संजीदगी से उसे देखा, फिर लिफाफे से फ्यूल निकाल कर डब्बी की शे बाहर निकाली, फिर शीशे के स्प्रे नोज़ल अपनी अंगली के करीब ले जाकर स्प्रे किया। देखो ये कितना फाइन और बराबर स्प्रे हुआ है। अगर नकली होता तो ज़रा एड़ी की सूरत में स्प्रे निकलता। मैंने कई बार प्रेस करके देखा है, क्योंकि पहली दफ़ा में तो ओरिजिनल परफ्यूम प्रेस करने पे भी स्प्रे इतना फाइन नहीं होता। उसने हाथ पर लगे परफ्यूम की उंगलियों को मसला, फिर शीशे के नोज़ल हया के सामने किया। देखे ये नोज़ल कितना पतला है और ओरिजिनल परफ्यूम का हमेशा पता होता है, जबकि उसे ब्रांड की नकली परफ्यूम का नोज़ल ज़रा खुला होगा। फिर वो शॉपर में परफ्यूम डालता पलट गया। उसने बस अस्पात में सर हिलाया। उस आदमी के पास हर मसले का हल होता है। जब वो कैलिस की गलियों से गुजर रहे थे तो वो सोचने लगी, आखिर कैसे उसके पास हर मसले का हल होता है? ये सारी बातें कोई सिखाता है उसे, या खुद सीखी जाती हैं तजर्बे से, मुशाहिदे से, या यकीनन किसी मसले की वजह से उकताया जाता होगा। फिर आम लोगों की तरह उस चीज़ को ठप कर बैठ नहीं जाता होगा, बल्कि उसका हल ढूंढता होगा, और ढूंढने से तो सब मिल जाता है। हाँ, वो स्ट्रगल वालों में से था। उसने मुतासिर होते हुए, मगर खैर उससे ये बात कहेगी तो नहीं। कैलिस छोटा सा कस्बा था। तंग मगर साफ गलियाँ, कोचे, फर्श, फलों और सब्ज़ों की रेड़ियाँ। पाकिस्तान की तरह छोटे शहर जैसा, मगर ज़्यादा साफ सुथरा। करीबन आधे घंटे बाद वो ऐसी ही गली में एक घर के दरवाजे पर खड़े थे। दस्तक देने के लिए चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा खुला। मरहबा, मोमर खातून ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मुस्कुराहट का पता आंखों से चला, वरना आंखों ने खुली स्कर्ट और लंबे ब्लाउज के ऊपर स्कार्फ से निकाब किया हुआ था। मरहबा। साथ ही जहान ने हया को आगे बढ़ने का इशारा किया। खातून रास्ता छोड़कर खड़ी थी। हया ने झुककर जहान को देखा, फिर उन खातून को सर के इशारे से सलाम का जवाब देते अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा सहन, आगे कमरे, दरवाज़ा था। वो तीनों दरवाजे तक साथ आए। चौखट पे जहान ने झुककर बूट के तस्मे खोलने लगा, फिर झुकी झुकी गर्दन उठाकर हया को ज़रा खफंगी से आंसुओं से इशारा किया। वो आगे बढ़ी और नकाब उतारते हुए तमीनात से खातून का हाथ लिया और चूमा आंखों से लगाया। ये मेरी बीवी है हया। वो अपने पाँव के जूते से निकाल रहा था। उन्होंने मुस्कुरा कर दुआ दी, उम्र में बरकत हो, नेमतों का बका और दुआ। वो मुस्कुराती हुई दोबारा नकाब करने लगी। वो सीधा होते हुए बोला, यहाँ और कोई नहीं है, उतार दो। फिर उन खातून की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मरियम खानम है, मेरे दोस्त अली करामत की वालदा। हया को हैरत का झटका लगा। अल्लाह अल्लाह, ये थी वो? हद है, जहां ने बताया भी नहीं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो वाकई खुशी से बोली थी। वो खातून मुस्कुराती हुई सर हिलाने लगी। जब वो एक फर्शी नशस्त वाले कमरे में
आ बैठी तो बहुत इश्तिकाक से कहने लगी, मुझे जहान ने बहुत दफ़ा आपके बारे में बताया है। करामत भी आपके हेज़ हैंड्स के वर्कशॉप था ना इस्तांबुल में, अब कहाँ है? उस सवाल पर मरियम खानम मुस्कुराई, आंखें ज़रा सिमटी। उन्होंने जहान को देखा। जहान ने हया को क्या कुछ गलत पूछ लिया? उनकी डेथ हो चुकी है बेटा, वो बोली तो आवाज़ हर सोगवार थी। ओह अल्लाह, मगफरत के लिए। उसे पछतावा हुआ। फिर मौजू बदलने के गर्ज से बोली, आपकी एक जेठानी भी थी फरीहा, जहान को बहुत पसंद थी, वो बताया था उसने मुझे, वो बहुत खूबसूरत थी। लोग इस्तांबुल में होते हैं क्या खूबसूरत? खानम, हम खाना खाएंगे मगर कोई तकल्लुफ़ न कीजिएगा, जो बनाया है ले आए, वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला। हया खामोश हो गई। फिर कुछ गलत पूछ लिया था शायद। हाँ, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। उसकी अपनायत पर उसने अपनी फीकी पड़ी मुस्कुराहट दोबारा दी और बाहर चली गई। कितना बोलती हो तुम? वो झुंझलाकर उसकी तरफ पलटा। गाँव तकिए से टेक लगाकर बैठे थे। जो पूछना है मुझसे पूछ लो, मगर उनसे नहीं। तुम तो जैसे फौरन बता दोगे ना। इतने घंटे हो गए हैं सफ़र को, एक दफ़ा जिक्र नहीं किया तुमने कि अली करामत के घर जा रहे हैं। फरीहा ने कई साल पहले खुदकुशी कर ली थी और उससे पहले उसके शौहर कत्ल कर दिया गया था। अल्लाह अल्लाह, शस्तर सी होकर उसने जहान को देखा। मगर क्यों? जहान निशाने उचकाए। ज़मीन जायदाद का मसला था शायद। ये लोग अब यहीं रहते हैं, उनके हालात भी अच्छे नहीं हैं। अली करामत आजकल इधर नहीं होता। अब ये टॉपिक उनके आगे न चलना। ओके, मैं चुप हूँ। उसने कंधे झटके। यूं ही लगा जहान असल वजह जानता था और छुपा गया था, लेकिन पूछने का फ़ायदा नहीं था। तुम मरियम खानम के लिए लाए हो ये परफ्यूम? उसने फिर सवाल किया, हालांकि उसके सामने ही जहान ने उन्हें वो गिफ्ट बैग थमा दिया। हाँ, उन्हें खुशबू पसंद है। जब मैं चला जाऊंगा तो उसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगी और उन्हें अच्छी भी लगेगी। वो उनका जिक्र बहुत मोहब्बत और अदब से कर रहा था। उसे अपनी मरहा जमीला पर खाने के वक्त मरियम खानम ने डिश उसके आगे करते हुए कहा, जहान को बोरक बहुत पसंद है और ईरान भी। तुम्हारी पसंद का पता नहीं, ये खाओगी? जी बिल्कुल। पहली बार उसे एहसास हुआ उसे जहान की पसंद नापसंद का इल्म नहीं था। खाने के बारे में ही सही, ईरान तुर्क लस्सी थी और बोरक समोसे या कचौरी ही एक जदीद शक्ल थी। जहान बहुत शौक से खा रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं, मगर खुलूस और मोहब्बत का भी अपना जायका होता है। तुम्हारा कमरा ऊपर तैयार है, तुम आराम कर लो। खाने के बाद वो हाथ धोकर आया और मरियम खानम ने कहा, जी। वो अस्पात में सर हिलाता, रुमाल से हाथ साफ करता, हया को एक नज़र जैसे कह रहा हो कि आराम कर लो, देखकर कमरे से बाहर निकल गया। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। आध खुले दरवाजे से सीढ़ियां नजर आ रही थी। वो अब ऊपर जा रहा था, उसके घर से जैसे वो बहुत मानूस थी। लाए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वो उनके साथ बर्तन उठाने लगी। किचन में आकर उसने देखा मरियम खानम ने अपना निकाब उतार दिया था। वो वाकई स्याह फाम थी, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत थी। और मोहब्बत पसंदीदगी तो नहीं कहते, अरबी लुगत में मोहब्बत कहते हैं किसी शख्स को किसी दूसरे की नज़र में खूबसूरत लगने को, इतना खूबसूरत कि वो दिल में खप जाए। वो वाकई इतनी ही खूबसूरत थी। उनका घर छोटा सा मगर सलीके से सजा हुआ था। बड़े घर तो सब सजा लेते हैं, असल आर्ट तो छोटे घर को सजाना होता है। बैठक से निकलो तो एक जानिब सीढ़ियाँ और दूसरी जानिब किचन था। तुम भी आराम कर लो, काफ़ी थक गई होगी। जब वो किचन में फैलावा समेटने लगी तो मरियम खानम ने बहुत अपनायत से कहा। हया ने एक नज़र खुली दरवाजे से नज़र आती सीढ़ियों को देखा। ऊपर एक ही कमरा होगा और कितना बुरा लगेगा कि अभी उधर चली जाए। नहीं, असल में मैं तो सोते ही आई हूँ ना, अभी थकी नहीं हूँ, बैठ बैठ कर ही जिस्म दुख रहा है। मैं आपके साथ बैठूंगी, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वो मुस्कुराई। जब किचन समेट लिया तो वो दोनों उसी फर्शी नशिस्त वाले कमरे में आ बैठी। कुछ लम्हे खामोशी से गुजर गए। हया को समझ न आया वो क्या कहे। नई जगह थी, वो बेतकल्लुफ़ होना नहीं चाह रही थी, मगर उस घर में कुछ अनोखी सी अपनायत थी। क्या वो अक्सर यहाँ आता रहता है? कभी कभार आता है।
وہ بھی پہلے 3 سال سے جب اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے۔ اس بات پر حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگا جیسے وہ نہیں جانتی وہ کون سا کاروبار کرتا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پوچھا۔ وہ ذرا گھبرائی، پتہ نہیں جہان نے کیا کہہ رکھا ہے۔ وہ زبردستی ذرا مسکرائی۔ زیادہ عرصہ نہیں، 22 سال ہونے والے ہیں۔ اچھا، اللہ تمہیں خوش رکھے، مگر سر ہلاتے دعا دے رہی تھی۔ اربوں کی مخصوص عادت۔ جہان کیا اتنے سال آپ سے کنیکٹ میں رہا تھا؟ ہاں، فون کرتا رہتا تھا، 2-3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا تھا۔ بہت سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں بھلایا۔ جی، وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر۔ اور آپ تو ڈاکٹر تھی نا؟ میرا مطلب ہے ہاں، مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ یہاں ہسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار، لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے تو اس لیے نہیں گئی۔ یعنی کہ جہان آنے سے پہلے مطلع کر چکا تھا۔ ان کے ساتھ وہ پہلے تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرنے لگی تو حیا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کہیں بھی پیچھے کا گاؤں تکیہ ٹکا کر آرام سے بیٹھ گئی اور کیلس کی باتیں، پاکستان کی زیتون کے درخت، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا۔ رات میں اس نے مریم خانم سے مل کر کھانا تیار کروایا۔ انہوں نے آج ماتنی بنائی تھی، عجیب و غریب سی ڈش تھی مگر بہت مزیدار تھی۔ مریم خانم کے بقول جہان کو بہت پسند تھی۔ جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہی تھی تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ جہاں مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی، آپ تو جہان کو اس سے پہلے ہی سے جانتی تھی نا؟ جب وہ اندر قالین پر آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی بات پر مسکرا کر سر اسبات میں ملایا۔ ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا۔ ساتھ انہوں نے مانتی ڈش کو دسترخوان کے وسط میں رکھ دیا، پھر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ تمام برتن رکھ دیے جا چکے تھے۔ وہ تینوں تکون کی شکل میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو پھر بتائیں نا آنٹی، جہان بچپن میں کیسا تھا؟ وہ اس طرح مسکراہٹ دبائے بیٹھے گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے مزے سے پوچھ رہی تھی۔ کھلے بال سمٹ کر ایک سائیڈ پر کندھے پر ڈالے، لمبی جامنی قمیض کے اوپر شانوں پر ٹیک سے زیتون کا دوپٹہ پھیلائے اس گھر میں بہت مانوس لگ رہی تھی۔ جہان کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، آنٹی نے ڈش اس کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے اپنے پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ تو بتائیں نا آپ، وہ کیسا تھا؟ اس نے ابرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانے میں مگن ہو گیا۔ وہی ایسے ہی تھا، بہت سمجھدار، ذہین اور تمیزدار۔ ہمارے جدیسی کے لڑکے جب کھیلتے تھے تو اکثر گیند ہمارے چھت پر آ جاتی تھی۔ لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگتے تھے، مگر یہ بہت اچھا بچہ تھا، کبھی بغیر پوچھے گھر میں داخل نہ ہوا، نہ کوئی چیز اٹھائی، کبھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا، نہ کسی سے لڑائی۔ سعادت مند لڑکا تھا، آنٹی بہت محبت اور اپنائیت سے بتا رہی تھی، اور وہ آدھا منہ کھولے ہکا بکا سن رہی تھی، اور سعادت مند بچے نے اسے سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس اللہ کرم کرے خانم، میری ممی کی تربیت بہت اچھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائی، حیا کو دیکھا جس کے چہرے کی خفگی بتا رہی تھی کہ اسے یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگیں۔ وہ خاموشی سے اپنے پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جہان نے بس اسے بیوقوف بنایا ہے تو وہ غلط تھا۔ اسی فرض میں وہ بہت سارے لوگ تھے، اللہ سمجھے تم کو۔ رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ اوپر آ گئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ اور نفیس سی بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بالکونی میں لٹکا دروازہ۔ تکون بلائی منزل پر بالکنی میں دروازہ ضرور ہوا کرتا تھا۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، وہ بیڈ کے پائنے پہ آ بیٹھی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ بالکنی کے دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھی۔ بیٹھو بیٹھو، وہ عجلت میں کہتا آگے آیا، کرسی کے سائڈ پر اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں، اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے حیا کو کہا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر اب وہ کچھ سے دیز کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وہ خاموش سی اسے دیکھنے لگی۔ ایک سی ڈی نکال کر جہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی،
चंद लम्हे के लिए कुछ देखा, फिर सीडी वापस निकाल दी, खोर में डाली, फिर लैपटॉप को उठा कर रखा और फिर चौंक कर उसे देखा। वो अभी तक जहान को देख रही थी। उसके देखने पर वो गड़बड़ा कर दूसरी तरफ देखने लगा। तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन उनको मत बताना। बैग उठाए, जिप बंद करते हुए खड़ा हुआ, उसके कंधे पर डाला और फिर बालकनी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये मुत्तफिक सी खिड़की होती है। कब आओगे? सुबह। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मेरे पास दूसरी चाबी है, उसने मुड़े बगैर कहा और बाहर निकल गया। काश इस वक्त मरियम खान सुन लेती कि उनके घर की कितनी चाबियां उनके सादतमंद बेटे के पास हैं। हया ने दरवाज़ा बंद करते हुए ज़रा सी झरझरी से बाहर देखा। बाहर एक खस्ता हाल जीना था जो घर के पिछली साइड पर उतर रहा था। बैक डोर की आदत तो उसे हमेशा ही थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और उसकी पुश लगाकर चंद गहरी सांसें ले ली। 24 घंटे, पूरे 24 घंटे बाद हम कैलिस के बॉर्डर पर होंगे। कल की रात बिलाशुबा एक यादगार रात होगी, उसने सोचा था। वो उसकी सोच से भी ज़्यादा यादगार होगी, वो ये नहीं जानती थी। सुबह सुनहरी दूर ध्यानपन कैलिस के खेतों और जैतून के दरख्तों के झंडा कतरा कतरा उतर रहा था। वो कमरे में रखे वाहिद कुर्सी पर टेक लगाकर बैठी बालकनी के दरवाजे को मुंतज़िर सी देख रही थी। सामने मेज़ पर नाश्ते की खाली बर्तन पड़े थे। वो काफ़ी देर से उसी पोजीशन में बैठी थी, अजरक के लंबे से कुर्ते पर बालों का ढीला सा झूड़ा बनाए, मुतफिर सी, मुजरब सी, मगर पुरसुकून। दफतन दरवाजे की होल से क्लिक की आवाज़ आई। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला। पट दोनों हाथों से पकड़े जहान ने दबे पांव उसे यूं धकेला कि उसकी चिड़चिड़ाहट कम से कम हुई। अभी आधा खुला था कि उसकी निगाहें सामने बैठे हया पर पड़ी। वो शायद उसके आराम की वजह से ऐसे खोल रहा था। उसे जागता देखकर सीधा हुआ और अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। सुबह बखैर, उठ गई? हाँ, कब? जहान ने अपना बैग बेड पर रखा। वो थका हुआ नहीं लग रहा था, ठीक ही था। शायद रात कहीं और सोया था, या शायद नहीं, पता नहीं क्या करता रहता है। क्या खानम आई थी? वो अब अलमारी की तरफ बढ़ा जहाँ उसके कपड़े रखे थे। हाँ, नाश्ता दे गई थी, मैंने तुम्हारा नहीं बताया। अच्छा, क्या बनाया है नाश्ते में? शायद उसके हाथ का जायका उसे बहुत पसंद था, इसलिए ज़रा दिलचस्पी से पूछा। साथ ही अलमारी से कपड़े उलट पुलट कर देखे। बोरक लाई थी, एक मेरा और एक तुम्हारा। तुमने अपना खा लिया? हाँ, और मेरा? उसने कपड़े और तौलिया कंधे पर डाले और हाथ उसकी तरफ देखकर कंधे पर डाले और बाथरूम की तरफ जाते हुए मुड़कर पूछा, तुम नहीं थे, अब वापस क्या करती? इसलिए मैंने वो भी खा लिया। वो जैसे और ही जवाब के मुतवक्का था, बाथरूम की तरफ जाने लगा था। मुड़कर तहरीर से उसे देखने लगा। तो मेरा नाश्ता कहाँ है? उसने आराम से सर हिलाया, टांग पे टांग चढ़ाए वो टेक लगाकर मज़े से बैठी थी। जहान ने तासुब से उसे देखा। दादा कहते थे कि उनके ज़माने में बीवियां शोहर के आने से पहले खाना नहीं खाती थी। ये तुम्हारे दादा क्या फ़िरौन के ज़माने के थे? वो मुंह बनाकर बोली। अभी तो गुजरा है उनका ज़माना, अभी भी वही रवाज है। पता नहीं बड़ों को क्या 9 छुट्टियाँ होती हैं, शायद उनका ज़माना ज़्यादा अच्छा था। उसकी बात पर जहान ने अफसोस से ज़रा सर झटका था। अच्छा सुनो, मरियम खानम के किचन के ऊपर वाले कैबिनेट में से दाएं हाथ के तीसरे कैबिन खोलो। वहाँ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें पड़ी होंगी, कुछ निकाल लाओ मेरे लिए। अल्लाह अल्लाह जहान, कल वो किसी के बारे में ये कह रही थी कि वो सादतमंद लड़का कभी बगैर पूछे चीज़ें नहीं लेता था। मैंने कब कहा कि मैं बगैर पूछे लूँगा? तुमने ये भी नहीं कहा कि वो पूछ लो। बोरिक से जी नहीं भरा जो सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रही हो, वो खफंगी से कहता बाथरूम चला गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। उसके जाने के बाद हया के लबों पर मुस्कुराहट उमड़ आई। साइड टेबल के पर्दे के पीछे से एक ढिची हुई प्लेट निकाल कर फिर ऊपर वाले प्लेट उठाकर जहान का बोरक देखा, उसे दोबारा ढका और सामने मेज़ पर रखा। फिर अपना पर्स उठाया, अंदर से पेन और पोस्ट का छोटा पेड़ निकाला और फिर सोफे पर लिखा, तुम्हारे दिमाग से बोरक का जायका बहुत अच्छा है। वो उसने नोट पैड से फाड़ कर फिर ऊपरी प्लेट पर चिपका दिया। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर थी। कुछ देर बाद जहान नीचे आया तो दोनों फर्शी नशस्त वाले कमरे पर बैठी थी। उस देखकर ज़रा सा मुस्कुराया, वही अपनायत भरी मुस्कुराहट। गालिबन बोरक उसे मिल गया था। वो भी जवाबन मुस्कुराई। दोनों ने कहा कुछ भी नहीं। फिर वो थोड़ी देर बैठकर
किसी काम का कहकर बाहर निकल आया। दोपहर में मरियम खानम जब कपड़े धोने के लिए सहन में आई तो वो भी अपना अबाया और स्कार्फ लेकर उधर ही आ गई। अबाया तो वो आदतन रोज़ ही धोती थी कि तुर्की हो या पाकिस्तान। हिजाब का ये मतलब तो नहीं था कि सफाई न रखी जाए, बल्कि उसकी सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। वो कभी भी गीले बालों पर स्कार्फ नहीं ओढ़ती थी। वो भले अबाया से कपड़े ना नज़र आए, मगर फिर भी वो इस्त्री शुदा कपड़े पहनती थी और बाल ठीक से बनाकर स्कार्फ लेती थी। आंटी, क्या आपके पास अबाया लोशन है? मेरा लोशन ख़त्म हो गया है, इत्तेफाक से मेरे पास भी नहीं पड़ा। तुम शैम्पू डालकर धो लो ठीक से। उनकी हिदायत के मुताबिक उसने बाल्टी में थोड़ा सा शैम्पू डाला, हाथ से मिक्स कर दिया। मरियम खानम मशीन में कपड़े डाल रही थी। वो उनके पास आ खड़ी हुई। आंटी, एक बात तो बताएं। पूछो, उन्होंने दौरान मसरूफियत पूछा। जहान कहता है कि कुरान में पहेलियाँ होती हैं, क्या वाकई ऐसा होता है? देखो बेटा, कुरान बजाते खुद पहेली नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र करते हैं, और ये तो खुद कुरान भी बार बार कहता है। हाँ, तुम कह सकती हो कि कुरान में बहुत सारी पहेलियां हैं, मगर आंटी, कुरान पाक तो आसान बनाकर उतारा गया है, तो फिर क्या ज़रूरी है कि उसमें हम पहेलियाँ ढूंढें? नहीं, कुरान आसान बनाकर नहीं उतारा गया, उसमें गौर व फिक्र करना पड़ता है। वो अब मशीन के टाइमर लगा रही थी। लेकिन आंटी, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि उसने कुरान को आसान बनाकर उतारा है। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कुरान को यकसर बनाकर उतारा है, लेकिन आसान नहीं। यसीर का मतलब आसान नहीं होता। ये तो अंग्रेज़ी और दूसरी ज़ुबानों में उसका तर्जुमान आसान कर दिया गया है, वरना इसका मतलब आसान नहीं होता। यसर कहते हैं किसी चीज़ को तमाम ज़रूरी लवाजमात से आरास्ता करके बनाया गया हो। मगर आंटी, आसान भी तो उसी चीज़ को कहते हैं। वो उलझी। नहीं बेटा, आसान कहते हैं पीस ऑफ केक को, यानी किसी को खाने के लिए केक का एक टुकड़ा दे दिया जाए। उसका मतलब है किसी अंडा, मैदा, घी, चीनी वगैरह और केक की रेसिपी पीकर किचन में भेज दिया जाए। सबके हाथ में होगा, मगर केक उसे खुद बनाना होगा। अब ये उस पर मुख्तसर है कि केक बनाता है या उस अशिया का आमलेट, मैदे की रोटी बनाकर अक्सर मकसद हट जाता है। इंसान के लिए वही होता है बेटा जिसकी वो कोशिश करता है। मशीन की ज़ोरदार आवाज़ चल रही थी। उसका अबाया भिगोए भी काफ़ी देर हो गई थी, सो उसने बाल्टी से अपना गीला अबाया उठाया और सहन के लगे सिंक पर ले आई। आंटी, क्या ये सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं? नल खोकर दोनों मुट्ठियों से स्याह हरीर को भीगते हुए झाग निकाल रही थी। पानी गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ सिंक से पाइप से नीचे जा रहा था। हाँ, क्यों नहीं? तो फिर वो पीछे क्यों आते हैं?